Very good afternoon to all the viewers. I, Ekant Shukla, on behalf of Saga Group of Institutions, would like to welcome you all in our series of Tech Talks, Systech Trends, where we bring you industry experts to enlighten us on various topics. Today, we are in conversation with our very special guest, Mr. Manish Pandey, Senior Consultant, PricewaterhouseCoopers, and today's topic is Know the Trends, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, and Data Mining. Now, I'm going to provide you a brief about Sir's profile. Manish Sir has 20 plus years of experience working in companies like Microsoft, PricewaterhouseCoopers, Persistent Systems, Ruchi Infotech, etc. He has a wide exposure of project management, quality assurance, leading geographically distributed large teams, software designing and development, team building, and training. Along with academically qualified as MCA, he is a certified PMP, Certified Professional Scrum Master, PMI India Senior Champion, MCP, and MCTS. Sir has worked on quite a few projects on machine learning, DL, and data analytics using Python, Power BI, Tableau, etc. We welcome you, sir, in this session. Now, I would like to invite Ms. Prachi Srivastav, Group Head Corporate Relations, to take over. Thank you, Ekansh, for such a brief. Welcome once again, Manish sir, to Thank our you. sister friends. As we all understand, like this time, each and every education institute is having, during this pandemic, a number of resources are available. The courses are available online. But sir, there is a fact that, we have a number of trending skill sets available in the market. And beyond this, students are not properly aware of what is basically the need of that particular course, what is the career focus has to be, or if they want to study these courses, what is the best selection criteria to go for the certification or the institute on n number of things which are really very important as far as the trending skill sets like machine learning and data science are considered. And simultaneously students need to address all these things with their curriculum. So there is a gap between to understand the importance of these subjects and the way where they can make their career in the same domain. So, sir, with due respect and having these particular projects in your hand, we want to listen to you what all sources you need and proper address from your side and expert advice to our coming technocrats. Sure, ma'am. I'm super excited to talk with all the faculties of Systech and students of Systech and everybody. I'll just share my screen over here. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So is my presentation visible? Yes, sir. Great. So good afternoon, everyone. My name is Manish Pandey. As sir has already introduced me, I'm MCA, MBA, PMP, PSM, MCTS, MCP, and I'm PMI India Senior Champion also. I'm very excited to discuss with all of you regarding AI, ML, and data science. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग सिस्टिक जो सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये सारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं. आई थिंक आप लोग ये दर्शाता है कि आप लोग बहुत सीरियस है अपने करियर को लेकर. आप लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग आगे कुछ करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं. और इस पेंडेमिक के समय जब चारों तरफ इतनी सारी निगेटिविटी घूम रही है, फैल रही है, वो सब निगेटिविटी छोड़ के आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है. सो आई थिंक अ बिग थम्स अप फॉर ऑल ऑफ यू. And at the same time, a big kudos for the faculties of Systech also, because whenever I talk to them, I always find them committed about development of all their students. So kudos to faculties of Systech also. So as I said, I'm super excited to discuss with all of you. So let's begin our discussion, starting with know the trend, AI, ML, and data science.
I'll start with a quote from Andrew Ng. So Andrew Ng is a very famous personality in the field of AI and machine learning. He says AI is the new electricity. Just as 100 years ago, electricity transformed industry after industry, AI will also do the same. So what does it mean? So अगर आप देखेंगे तो 100 साल पहले के और करीब 100 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उसके पहले जब इंडस्ट्रीज वगैरह चलती थी, काम करती थी, सो वो सब की सब इंडस्ट्रीज या तो मैनुअली काम करती थी या फिर स्टीम के एनर्जी को यूज करके काम करती थी. बट जब से इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, जब से इलेक्ट्रिसिटी पॉपुलर होना स्टार्ट हुई, आज अगर हम देखते हैं 100 साल बाद कि हम आज कोई भी इंडस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलती हो. ओके, सो एआई भी इसी तरह का करने वाला है सारी इंडस्ट्रीज के साथ. इसका मतलब ये है कि आज से आने वाले कुछ सालों बाद हम किसी ऐसी इंडस्ट्री की कल्पना नहीं कर पाएंगे जो एआई के बिना काम करती हो. ओके, so you can understand the importance of AI in field of our lives. Okay, so today we will be talking about few things. So first we'll discuss about three things. First thing is the future is now. Okay, the second is future is here, and third the future is bright. Okay, what do I mean by all these three things? First of all, the future is now. Okay, इसका मतलब क्या है? हम आज से कुछ साल पहले तक बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में कल्पना करते थे ये सब फ्यूचर में होने वाली हैं. लाइक हम ये कल्पना करते थे कि ऐसी कोई कार होगी जो बिना ड्राइवर के अपने आप चलने लगेगी. हम ये कल्पना करते थे कि ऐसी मिसाइल्स होंगी जिसको आप अगर किसी का मोबाइल लोकेशन दे दिया तो ऑटोमेटिकली उसको ट्रेस करके वो जहाँ भी होगा वहाँ पर उसको टारगेट करेंगे. ऐसे वेपन्स होंगे, अगर आपने उसको किसी का फोटो शो किया है तो इट विल आइडेंटिफाई द फोटो एंड द पर्सन एंड उसी को जाके वो पर्टिकुलर वेपन्स टारगेट करेंगे. हम ऐसी रोबोट्स की कल्पना करते थे जो घर में खाना बनाएंगे या इंडस्ट्रीज में काम करेंगे. ये हम सोचते थे कि आज से आने वाले समय में कभी ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा. बट द रियलिटी इज ये सब अब आज इस समय ये सब होगा नहीं, ये सब आज हो रहा है. ओके, तो जो हम फ्यूचर की कल्पना करते थे वो फ्यूचर आज हो रहा है. सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग इज द फ्यूचर इज नाउ. ओके, सो व्हाई वी आर सेइंग फ्यूचर इज नाउ? कुछ एमएल मशीन लर्निंग एआई के कुछ प्रोजेक्ट्स है जो अभी हम फ्यूचर में सोचते थे होने वाले, जो आज हो रहे हैं. तो पहले उन प्रोजेक्ट्स के एक दो वीडियोस देखते हैं और फिर हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट वीडियो इज अबाउट द प्रोजेक्ट NVIDIA BB8. सर, वीडियो इज विजिबल? Okay, so we are talking about a car which is BB8. It has been designed by NVIDIA. Okay, so it has learned driving in a parking lot, then started learning it through its mistakes. और इसने कोन्स के थ्रू नेविगेट करना लर्न किया कार ने. ओके, ह्यूमंस को ड्राइव करते हुए देखा, उससे लर्न किया. ये लेन के साथ भी ड्राइव कर सकती है और विदाउट लेन्स की रोड्स पे भी ड्राइव कर सकती है. इवन इफ देर आर ब्लाइंड कॉर्नर्स, अगर 90 डिग्री टर्न्स है तो भी ये कार प्रॉपरली टर्न ले सकती है. अगर रोड पर कहीं डाइवर्जन्स है सो इट कैन टेक डाइवर्जन, कैन टेक 90 डिग्री टर्न्स ऑल्सो. और अगर कहीं रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऑब्जेक्ट से बीच में तो इट विल डिटेक्ट दैट एंड इट विल एडजस्ट इट्स पाथ अकॉर्डिंगली. और कुछ लोग कह सकते हैं कि ये कार जिस सिटी में चलाना लर्न करेगी उसी में ही चला सकती है. बट इस कार ने कार चलाना कैलिफोर्निया में सीखा एंड इट ड्रो इन न्यू जर्सी. सो आप इस कार को एक सिटी में ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड करते हो, इट कैन ड्राइव ऑन अदर सिटीज ऑल्सो एंड इट कैन लर्न ड्राइविंग इन नाइट ऑल्सो. बारिश में भी ड्राइव कर सकते हैं और अगर कोई सडन ऑब्जेक्ट सामने आते हैं तो भी उसके हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकती है. ओके, so this was about driving car. Second, we are talking about a project called Mole. So Mole is basically a robot who can cook food for you. So you can download a recipe, you can set the recipe, and the robot can cut the vegetables, it can cook it and serve it also. You can record your recipes, you can upload your recipes, you can share your recipes with your friends and relatives.
You can download recipes from the internet, and that robot can cook those recipes for you. And it can clean the kitchen also. Okay, so this was second. Third is emotional radio, Solo. So this is a radio which can detect your mood, and based on your mood, it can play the songs. So it will identify your mood if you are angry. It will identify your mood and play song accordingly. So if you are happy, it will identify you are happy. And it will play sounds according to your mood. Okay. So these are couple ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हम सोचते थे कि फ्यूचर में होने वाले हैं. इसके अलावा अगर आपने अभी देखा हो इजराइल में जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर हुआ था, वहां पर इस तरह की आयरन शील्ड उन्होंने डेवलप की है, जहां पे अगर जो भी आपकी एनिमी है वो जो भी रॉकेट्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, सो दैट शील्ड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स कि ये एक मिसाइल है या रॉकेट है और उसको हवा में ही वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑल अराउंड अस जो हम पहले सोचते थे कि फ्यूचर में होने वाले हैं और आज हमारे सामने हो रहे हैं. सो दैट इज व्हाई वी कॉल दैट फ्यूचर इज नाउ. मतलब फ्यूचर आने वाला नहीं है, फ्यूचर आज आ चुका है. सेकंड, हम ये कह रहे हैं फ्यूचर इज हियर. सो कई बार ये सोचने में आता है कि एआई है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, ये बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं जो शायद सिलिकॉन वैली में या मेट्रो सिटीज़ में या टीयर ए सिटीज़ में ही यूज़ में आती है या वहीं पे इसका इम्प्लीमेंटेशन है. बट अगर हम देखेंगे तो फ्यूचर हमारे आसपास हर जगह है. इवन हम अपने पॉकेट में भी अपने फ्यूचर को लेकर घूमते हैं. सो वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं. वन ऑफ देम इज़ फेसबुक. फेसबुक में हम अगर कोई फोटो अपलोड करते हैं, इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द फेसेस कि ये इस फोटो में कौन कौन है जिसको आप टैग कर सकते हैं. सो दोज एल्गोरिथम्स जो फेस को आइडेंटिफाई करती हैं, those algorithms are using machine learning algorithms. Okay. Similarly, अगर आपका कोई फोटो किसी फ्रेंड ने अपलोड किया है तो आपको भी एक नोटिफिकेशन आता है कि somebody has uploaded a photo जिसमें कि it looks like you are there. So if you want to tag yourself or you want to remove that photograph, so those algorithms are also, those face detection algorithms are also machine learning and deep learning algorithms. Okay. Similarly, Google Maps हम सब लोग यूज करते हैं. So it analyzes the traffic, it analyzes the speed और उसके हिसाब से आपको ये बेस्ट रूट सजेस्ट करता है. सो ऑल ऑफ अस आर यूजिंग गूगल मैप्स. सो गूगल मैप्स इज यूजिंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम टू reduce travel time and suggesting the fastest route. So we all are using machine learning and deep learning algorithms. Similarly, Google search, जब हम Google search में कुछ भी सर्च करते हैं तो all other websites are also start showing the advertisements related to our search. So Google search and the recommendations and suggestions algorithms are also machine learning and deep learning algorithms. Okay, similarly Gmail में आजकल एक स्मार्ट रिप्लाई का ऑप्शन आया है. अगर आप सबने देखा हो तो अगर आपके पास कोई मेल आती है तो ऑटोमेटिकली सजेस्ट यू फ्यू सजेशंस कि क्या पॉसिबल रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं. सो इफ यू वांट टू रिप्लाई, आप वो रिप्लाई कर सकते हो. सो दीज आर ऑल्सो मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम जो आइडेंटिफाई करती है कि मेल में क्या लिखा है और उसके हिसाब से क्या पॉसिबल रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं. सिमिलरली उबर कैब्स, उबर, ओला, जितनी भी कैब्स हम लोग देखते हैं, ये सारी की सारी जितनी भी कैब सर्विसेज हैं, ये सारे के सारे ऐप्स मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपकी कैब कितनी देर में आने वाली है, कौन से लोकेशन पे आने वाली है. सो ऑल दीज ऐप्स आर यूजिंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स. सिमिलरली उबर ईट्स, ओला फूड पांडा, ये सब जितने भी फूड डिलीवरी एल्गोरिथम्स, जोमेटो, स्विगी, ये सारे के सारे ऐप्स बेसिकली दे आर यूजिंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स.
So now you can imagine कि machine learning, deep learning, AI algorithms हो सकता है बहुत tough सुनाई देती हो, बहुत complicated सुनाई देती हो, but इनका जो implementation है वो इतना वास्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ह्यूज है कि आज अगर आप देखोगे तो जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ हैं, ये भी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि दे आर यूजिंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो आप सोच सकते हो कि इसका इम्पैक्ट कितना ह्यूज है और कितना कॉमन है। Okay, so we discussed two things till now. Future is here, and third we are discussing future is bright. Okay, why we are saying future is bright? Because of these reasons. What people are saying, IDC is a research company. It says 80% of all the applications will have an AI component by 2020. So we are already in 2021. So you can imagine जितने भी applications world में आप देख रहे हैं, यूज करते हैं, उसमें से 80% एप्लीकेशंस जो हैं उसमें कुछ ना कुछ एआई का कंपोनेंट जरूर होगा। आईडीसी का ही कहना है कि जो एआई मशीन लर्निंग में जो स्पेंडिंग $12 बिलियन की थी 2017 में, वो ग्रो करके $57.6 बिलियन हो जाएगी 2021 तक। सो इट्स ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इन 5 years। ओके, सो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें अभी एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली एनवीडिया जो एआई और मशीन लर्निंग में लीडर है, उसके जो हेड हैं, ही सेइंग देयर इज अ ह्यूज नीड फॉर डेवलपर्स हु नॉट ओनली अंडरस्टैंड एआई, जो सिर्फ एआई को समझते नहीं हो, बट उनको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी एल्गोरिथम को कहाँ पर अप्लाई करना है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। सो ऐसे लोगों की ह्यूज नीड है अभी मार्केट में। वन मोर थिंग, मार्केट ओवरव्यू एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स में जो ग्लोबल फोरकास्ट किया था 2022 का, इट सेज machine learning market is expected to grow at 44.1% compound annual growth rate, CAGR 44.1% है। So these are some of the people are saying, and now we are seeing who all are investing in the field of AI and machine learning. So all big companies, आप जिनके भी नाम जानते हैं, जिनके भी नाम आपने सुने हैं, सभी की सभी कंपनीज AI और मशीन लर्निंग में बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रही हैं, लाइक फेसबुक, याहू, ईबे, आइलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ AI, गूगल, IBM, Vicarious, Microsoft, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, they all are either starting new big projects or they are acquiring other companies who are using machine learning and deep learning models. Okay, so आप समझ सकते हो कि कितना इसका इम्पैक्ट है। सिमिलरली हम ये देखना चाहते हैं कि हर फील्ड में, AI से रिलेटेड कुछ फील्ड्स हैं, हर फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ सालों में बाय 2025। तो एक एरिया है जहाँ पर AI मशीन लर्निंग यूज होता है, विच इज़ कॉल्ड AI नॉलेज वर्क, जिसमें AI से रिलेटेड मार्केटिंग है। अभी सब लोग टारगेटेड मार्केटिंग में विश्वास रखते हैं। जब टारगेटेड मार्केटिंग मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप सपोज फैशन ब्रांड हो तो प्रॉब्ली वुड लाइक टू फोकस ऑन अर्बन एरिया पीपल, जिनके पास स्मार्टफोन्स वगैरह हो, जो अर्न करते हो, उनकी एज ग्रुप अगर 18 से लेकर 40 के बीच में हो। सो इस तरह की टारगेटेड मार्केटिंग आप AI और नॉलेज वर्क रिलेटेड उससे कर सकते हैं। तो ये सिमिलरली ERP, बिग डेटा, स्मार्ट असिस्टेंट्स, जैसे कि आप सभी के पास अभी गूगल का ये इको डिवाइस होगा, आपके पास एलेक्सा आप लोगों ने सुना होगा। सो ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है। सो दे ऑल आर स्मार्ट असिस्टेंट्स। ओके, सो ये जो AI रिलेटेड नॉलेज वर्क का एरिया है, इसमें अराउंड $25 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है बाय 2025। सो इमेजिन हम लोग यहाँ पर $1 मिलियन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम $1 बिलियन की भी बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट $1 ट्रिलियन। सो बाय 2025 AI नॉलेज वर्क एरियाज में $25 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि कार्स हैं जो आपस में बात कर सकती हैं, ऐसे अप्लायंसेस हैं, सपोज आपके पास माइक्रोवेव ओवन है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ACs हैं, ये सारे अप्लायंसेस भी आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो दीज ऑल अप्लायंसेस आर यूजिंग सम कंपोनेंट ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग। सिमिलरली AI बेस्ड CCTV कैमराज आर ऑल्सो अवेलेबल, जो आपको लाइव वीडियोस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पर्सन है, कितने लोग अंदर जा रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं। इवन कुछ कंपनीज है जिन्होंने अभी इस तरह के एप्लीकेशंस डेवलप किए थे ड्यूरिंग द पैंडेमिक की
अगर आपके ऑफिस में वो कैमराज लगाए हैं, अगर कुछ कॉमन एरियाज में वो कैमराज लगाए हैं, सो दे कैन आइडेंटिफाई कि वेदर सोशल डिस्टेंसिंग इज बीइंग फॉलोड प्रॉपर्ली और नॉट. सो कैमराज आर ऑल्सो यूजिंग IoT and some component of AI and machine learning. Similarly, meters, wearables, we all know about wearables, health bands, और इस तरह के डिवाइसेस, स्मार्ट वॉचेस आर अवेलेबल, जो कि आपका ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, आपका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, और अगर कुछ सडन चेंज आता है ब्लड प्रेशर में, टेम्परेचर में, शुगर लेवल में, तो दे कैन ऑल्सो कॉल योर डॉक्टर, एम्बुलेंस और योर रिलेटिव्स ऑल्सो. सो इस तरह के जो अप्लायंसेस हैं, डिवाइसेस हैं, उसमें भी अराउंड 15 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है बाय 2025. सो फ्यूचर लुक्स ब्राइट. सिमिलरली रोबोट मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें कि रोबोट्स के बारे में हम सबको पता है, उसके बेनिफिट्स हम सब जानते हैं. 24 आवर्स डे पर डे काम करते हैं बिना थके, बिना रुके, कोई ब्रेक नहीं, कुछ खाना नहीं, कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं. ओके, दे डोंट लीक सीक्रेट्स. ओके, इसमें 1 मिनट हम थोड़ा सा स्पेंड यहाँ पे कर सकते हैं. ऐसे सारे रोबोट्स हम सब लोगों के घर में होते हैं, जिनको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जिनको हम शायद मदर कहते हैं या वाइफ कहते हैं, सिस्टर्स कहते हैं, सिस्टर इन लॉज कहते हैं, जो 24 आवर्स डे काम करते हैं, जो बिना ब्रेक के काम करते हैं, जो कभी क्विट नहीं करते, कभी बोर नहीं होते, हमेशा हम लोगों के लिए. और स्पेशली इस समय पैंडेमिक के समय, लॉकडाउन के समय, उन लोगों का इंपॉर्टेंस और हमारी लाइफ में बढ़ गया है. सो हम लोग 1 सेकंड रुक के उन सब लोगों को थैंक्स बोल सकते हैं कि ऐसे रोबोट्स हम सबकी लाइफ में जो हम लोग को केयर करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं. ओके, सो this was like out of the topic, but we can spend a minute on thanking them. So actually robot manufacturing में भी we are expecting $10 trillion of investment by 2025. Similarly healthcare में robotic surgeries में रोबोटिक सर्जरीज भी 2 तरह की पॉसिबल होती है, जहाँ पे रोबोट खुद से पूरी सर्विस सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, एंड दूसरी रोबोट असिस्टेड सर्जरीज होती है, जहाँ पे एक्चुअल सर्जरीज डॉक्टर परफॉर्म करते हैं, बट रोबोट्स उनको असिस्ट करते हैं, रोबोट्स डॉक्टर्स को. सो सिमिलरली मेडिकल रिकॉर्ड्स सारे ऑनलाइन हम लोग अभी रखने का प्लान चल रहा है. एंड AI बेस्ड डायग्नोसिस, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि कई सारी जो बीमारियां हैं उसमें जो मशीन लर्निंग और AI डायग्नोस करते हैं उन बीमारियों को, वो डायग्नोसिस कई जगह पर डॉक्टर्स से भी बेटर उनका परफॉर्मेंस आया है. तो लाइक अगर आपको किसी को CT स्कैन किया है, CT स्कैन को एनालाइज करना है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर है या नहीं है, सो यू कैन गिव सच इंफॉर्मेशन टू AI मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. दैट एल्गोरिथम कैन डिसाइड वेदर दिस इमेज कंटेन्स कैंसरस सेल्स और नॉट. सो इन मेनी केसेस दीज diagnoses have been proved better than doctors also. Okay, so in healthcare also we are expecting $10 trillion of investment by 2025. Similarly self-driving vehicles, we already saw an example. So इसमें भी $10 trillion का investment expected है by 2025. सारी बड़ी कंपनीज, सारी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज, GM, मर्सिडीज, वॉल्वो, ये फुली सेल्फ ड्राइविंग कार में इन्वेस्ट कर रहे हैं. इवन आपको देख के आश्चर्य होगा कि जो नॉन ऑटोमोबाइल कंपनीज है, लाइक गूगल, उबर, एप्पल, they are IT companies or they are taxi companies, but they are also investing in self driving vehicles. So they are all expecting कि बहुत जल्दी self driving car launch होगी. Similarly एक और फील्ड है ड्रोन, जिसमें कि AI का काफ़ी कंपोनेंट यूज होता है. इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अराउंड 98 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है बाय 2025. सो ऑल इन ऑल द फ्यूचर लुक्स ब्राइट. 50 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हमको एक्सपेक्टेड है. देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स वर्किंग इन एरिया ऑफ AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग. बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड. बहुत तेजी से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है. इसके सारे के सारे सॉफ्टवेयर या तो फ्रीली अवेलेबल है या बहुत चीप कॉस्ट पे अवेलेबल है. मतलब अगर आप AI मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं तो इसके जितने भी रिसोर्सेस है, अगर आप पाइथन की बात करें, R की बात करें, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट AI की बात करें, अगर आप और भी जितने सारे सॉफ्टवेयर है, या तो वो फ्री अवेलेबल है या फिर बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है. इवन इनके कोर्सेज भी कई सारी वेबसाइट्स पे फ्री में है, या फिर बहुत 450, 500, 1000 रुपये में इनके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. ओके, एंड last but not the least thing is we have opportunity to improve the world. Okay, lot of people अभी जिनके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे भी सही और क्वेश्चंस होते भी हैं कि
एआई मशीन लर्निंग से हम लोग शायद वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ये लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, बट अगेन इट्स लाइक एनी अदर टूल। अगर आप कोई भी टूल की बात करें तो वो टूल में अपने आप में कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है, इट डिपेंड्स कि आप उस टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग पॉजिटिवली यूज़ करते हैं तो वी हैव अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द वर्ल्ड यूजिंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स। सो फ्यूचर लुक्स future is now, the future is here, and the third thing we saw is future is bright. Okay, so we saw about these three things, but इतना सब चल रहा है वर्ल्ड में एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बारे में, इतना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट एक्चुअली ये है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है। ओके, तो एक स्लाइड में हम थोड़ा सा ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो एआई का जो कंपोनेंट है, एआई के बारे में लोगों ने 1956 के बारे से बात करना स्टार्ट किया था। कोई माइक अनम्यूट है, आई थिंक इसको म्यूट कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो एआई के बारे में जो फर्स्ट टर्म इसका कॉइन हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट स्टार्टेड इन 1956। सो उसके बाद काफ़ी एल्गोरिथम्स में लोगों ने रिसर्च स्टार्ट किया। देन अराउंड 1978 और 79 और 80s में पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मतलब मशीन जो खुद से लर्न कर सकती हैं, खुद से सीख सकती हैं, खुद से चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकती हैं। ओके, एंड देन अराउंड 2008 और 9 और 10 पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डीप लर्निंग। डीप लर्निंग हो जिसमें कि हम लोग ह्यूमन ब्रेन को सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसा ह्यूमन ब्रेन लर्न करता है, जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, जिस तरह से हम लोग डिसीजंस लेते हैं, सेम वे में मशीन्स भी डिसीजन ले सकें। सो दैट इज डीप लर्निंग। ओके, हम लोग इसके बारे में और देखेंगे एक दो स्लाइड्स में, बट उसके पहले एक सवाल दिमाग में आता है कि जब एआई के बारे में लोग 1950 से बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग के बारे में 1980 से बात कर रहे हैं, डीप लर्निंग के बारे में 2008-9 से बात कर रहे हैं, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि अचानक सारी दुनिया एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में इतना सारा इन्वेस्ट कर रही है? क्यों सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ एआई मशीन लर्निंग के बारे में कोर्सेस स्टार्ट कर रही है? क्यों सारी कंपनीज एआई मशीन लर्निंग से रिलेटेड एरियाज में प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं? क्या हम लोग क्विकली गेस कर सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ है नियर फ्यूचर में कि सभी लोग एआई मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप लोग अपने थॉट्स चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि मतलब पहले ऐसा क्या नहीं था जो अब है, जिस वजह से एआई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं? क्विकली एक मिनट में आप लोग अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं कि पहले ऐसा क्या नहीं था जिस वजह से एआई मशीन लर्निंग इतना पॉपुलर नहीं था, और अब अचानक ऐसा क्या हो गया है जिस वजह से पूरी दुनिया एआई मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रही है? क्विकली आप लोग अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं क्या इसमें? एनी थॉट, एनी गेस? Do we have any answers? Huge data, outcome required. Okay, any other guess? Okay, market driven, ease of life, quick results, right? Okay, ठीक है, हम लोग इसमें इसको कंटिन्यू करते हैं। आपके आंसर्स कुछ हद तक सही है, बट व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट इज, ये हम 2-3 स्लाइड से जानने की कोशिश करते हैं कि पहले ऐसा क्या नहीं था जो आज है, जिसकी वजह से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई इतना पॉपुलर है। ओके, अगर आप ये इमेज देखेंगे, इसमें सबसे लेफ्ट में जो इमेज है जो 1956 की है, इसमें एक बहुत बड़ी डिवाइस है जिसको कि क्रेन से प्लेन में चढ़ाया जा रहा है। अगर आप गेस करना चाहोगे कि ये क्या है, सो आई विल टेल यू, इट इज अ हार्ड ड्राइव, इट्स अ स्टोरेज ड्राइव। उसकी कैपेसिटी है 5 मेगाबाइट। ओके, यू हर्ड इट राइट, 5 मेगाबाइट, और उसकी कॉस्ट है $2,500 फॉर 1 मंथ रेंट। ओके, $2,500 में भी आप इसको खरीद नहीं सकते, इसका 1 महीने का रेंट है $2,500। सो 1956 में 5 MB के हार्ड ड्राइव का साइज इतना बड़ा था, कॉस्ट इतनी ह्यूज थी, $2,500। 1980 में आप देखेंगे बीच में एक 10 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव है जिसकी कॉस्ट है $3,500। ओके, 10 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव,
$3,500 में। और इसमें नीचे कहीं पर था, मैंने एक बार इसको जूम करके देखा था, तो इसमें नीचे ये भी लिखा था कि दिस इज व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। ओके, सो 1980s में पीपल वर वेटिंग फॉर $10 मेगाबाइट हार्ड डिस्क एट द कॉस्ट ऑफ $3,500। ओके, सो और अगर आप अभी देखोगे 2017 या 2018, 20, 21 में एक 256 GB की पेन ड्राइव या स्कैन डिस्क है, जो आपकी प्रॉब्ली फिंगर टिप्स पे भी आप उसको रख सकते हो, और उसकी कॉस्ट है $149। ओके, सो आप इमेजिन कर सकते हो ये 25 साल में हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी दोगुना बढ़ी, और ये 30-35 सालों में हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी जो है वो 25,600 टाइम्स बढ़ चुकी है। ओके, सो द थिंग इज कि पहले जितनी भी आपकी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं, दे ऑल नीड लॉट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। उसमें सब बहुत सारी स्टोरेज की जरूरत होती है, और अगर आपके पास स्टोरेज ही नहीं होगा तो आप किस तरह से उन एल्गोरिथम्स को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो पहले हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी बहुत कम थी, बहुत कॉस्टली थी, और आज अगर आप देखेंगे तो हार्ड ड्राइव आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत सस्ते में अवेलेबल है। सो फर्स्ट थिंग इज स्टोरेज, जो पहले नहीं था, आज बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है जिसमें आप अगर देखेंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने बैक्टीरियल डीएनए में डेटा स्टोर करना स्टार्ट किया है। उन लोगों ने एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन किया है, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया के डीएनए में उन्होंने डेटा को स्टोर किया, उस डीएनए को फिर से बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया, और उस वीडियो को जो उन्होंने उस डीएनए में डाला था उसको उन्होंने सक्सेसफुली पूरा रीप्ले किया है। सो इसका फायदा क्या है, अगर हम इसको सक्सेसफुली डेटा को डीएनए में स्टोर कर सकते हैं, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? सो टेक्निकल बेनिफिट्स, रीड राइट स्पीड इसकी बहुत बहुत फास्ट है। डेटा रिटेंशन, हार्ड डिस्क का अगर आप देखोगे तो 10 साल, फ्लैश मेमोरी का देखोगे तो अराउंड 10 साल, बट बैक्टीरियल डीएनए में अगर आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया, सो यू कैन बी श्योर कि आपका डेटा 100 साल तक कहीं नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो पावर यूसेज इसका बहुत बहुत कम है। डेटा डेंसिटी, इट इज़ लाइक 10⁻19 बिट्स पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट में अगर आप देखोगे तो इसका एक वो है कि अगर आपको वर्ल्ड का पूरा डेटा स्टोर करना है, वर्ल्ड का पूरा डेटा से मतलब है जितने भी ईमेल्स हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, जितने भी बुक्स आपने पढ़ी है, जितनी मूवीज आपने देखी हैं, व्हाट्सएप पर जितने गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस आते हैं, पूरा डेटा अगर हम एक जगह पर स्टोर करना चाहें तो यू विल नीड 1 kg ऑफ डीएनए। ओके, आप 1 किलो डीएनए थैली में लेके आएंगे और आप वर्ल्ड का पूरा डेटा स्टोर करके ले जा सकते हैं। ओके, सो यू कैन सी कि डीएनए, ये स्टोरेज का जो एडवांसेस है, स्टोरेज के एरियाज में जो अभी रिसेंट इनोवेशन हुए वो कितने यूज हुए हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन। पहले स्टोरेज कैपेसिटी उतनी नहीं थी, कॉस्टली थी, अब स्टोरेज हमारे पास अथाह अवेलेबल है। सेकेंड रीजन इज प्रोसेसिंग पावर। ओके, सो ये स्लाइड में आपको शायद बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, बट मैं आपको इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। सो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव ईयर्स एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्रोसेसिंग पावर। ओके, हम अभी समवेयर यहाँ पर हैं। ओके, इसमें प्रोसेसिंग पावर अगर आप देखेंगे तो पहले प्रोसेसिंग पावर हमारे पास बहुत ही कम था, बहुत ही कम था। ठीक है, आज हमारे पास जो प्रोसेसिंग पावर है, दैट प्रोसेसिंग पावर सरपासेस ब्रेन पावर ऑफ माउस इन 2015। सो आज हमारे पास इतने ऐसे प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं जो कि माउस के ब्रेन पावर से भी ज़्यादा फास्ट रन कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास प्रोसेसर्स आज बहुत फास्ट अवेलेबल हैं। एक ये रिसर्च है विच सेज कि 2023 तक हम लोग ह्यूमन का ब्रेन पावर भी सरपास कर सकते हैं। सो इवन आफ्टर इतने सारे एडवांस होने के बाद भी, इतने सारे इन्वेंशंस होने के बाद भी, आज भी ह्यूमन का जो ब्रेन पावर है, इट इज़ मच मोर देन द प्रोसेसर्स अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, मार्केट में जितने भी फास्ट से फास्ट प्रोसेसर अवेलेबल है, उससे भी फास्ट हमारा ब्रेन अभी काम करता है। बट 2023 में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास ऐसे प्रोसेसर्स होंगे जो हमारी ब्रेन से भी ज़्यादा फास्ट काम करेंगे। 2045 तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास ऐसे प्रोसेसर्स अवेलेबल होंगे जो सारे के सारे ह्यूमंस को मिला के, ब्रेन पावर को कंबाइन करके भी उससे भी फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड होगी इसकी। बाय 2045 तक हमारे पास इतने फास्ट प्रोसेसर्स अवेलेबल होंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जितने भी एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, दे ऑल नीड लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर, दे नीड लॉट ऑफ कंप्यूट पावर। तो पहले हमारे पास इतने फास्ट प्रोसेसर्स अवेलेबल नहीं थे, बट आज हमारे पास बहुत फास्ट प्रोसेसर्स अवेलेबल है और बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है। सो
This is the second reason why AI and machine learning algorithms are so popular these days. We'll see third thing, and third thing is huge amount of data. Like अभी किसी ने कहा भी था कि huge data. पहले हमारे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं था, तो जितने भी AI मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, दे नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा फॉर ट्रेनिंग. सो पहले हमारे पास डेटा ही नहीं था, तो हम मशीन को कैसे ट्रेन करेंगे, एल्गोरिथम्स को हम कैसे ट्रेन करेंगे. आज अगर आप देखोगे तो बाय 2020 we have 40,900 exabytes of data. So for your reference, I mentioned 1 exabyte is 10 to the power 18 bytes. तो आज हमारे पास इतना ज़्यादा अमाउंट में डेटा अवेलेबल है कि आज हम इन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को ट्रेन कर सकते हैं. ओके, सो 3 थिंग्स. स्टोरेज जो पहले नहीं था आज बहुत ज़्यादा है. सेकेंड थिंग, प्रोसेसिंग पावर जो पहले नहीं था आज बहुत है. और थर्ड थिंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो पहले अवेलेबल नहीं था बट आज बहुत ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है. ओके, हमारे पास अभी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत पहले कंप्यूटर्स लर्न करना स्टार्ट किया होगा. वो लोग जानते होंगे कि जब हम लोग यूज़ करते थे तो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, हमारे पास स्टोरेज अवेलेबल नहीं होता था, हमारे पास प्रोसेसिंग पावर अवेलेबल नहीं था, हमारे पास इंटरनेट बहुत स्लो होते थे. तो एक बहुत फेमस कोटेशन है विच सेज कि आज हम लोग रिसोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है, आज हम लोग इमेजिनेशन कॉन्स्टेंट है. व्हाट डू वी मीन बाय दिस? कि आज हमारे पास रिसोर्सेज तो अथाह अवेलेबल है, इनफाइनाइट रिसोर्सेज आर अवेलेबल. अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी बड़ी क्लाउड कंपनीज हैं जो आपको फ्री में स्टोरेज प्रोवाइड कर रही हैं, जो आपको फ्री में प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड कर रही हैं, जो आपको फ्री में मेमोरी प्रोवाइड कर रही हैं, फ्री में डेटा भी सब जगह पर अवेलेबल है. सॉफ्टवेयर आर ऑल अवेलेबल इन विदाउट एनी कॉस्ट. तो आज आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आपको बस इमेजिन करना है और आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. तो वी आर नॉट रिसोर्स कॉन्स्टेंट दीज डेज, वी आर इमेजिनेशन कॉन्स्टेंट दीज डेज. सो जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं, आई रिक्वेस्ट देम कि आप अपनी जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है, जो भी वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है, आप उनका सॉल्यूशन इमेजिन करो एंड ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स यूजिंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स. ओके, सो सेकेंड हमारा जो भी टॉपिक है कि कई हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एआई के बारे में हम बात करते हैं, मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं, डेटा माइनिंग, बिग डेटा, एआई, डीप लर्निंग, बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं. बट हम लोगों का कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि ये टर्म्स आखिर है क्या सिमिलैरिटीज़ है इन सब में, क्या डिफरेंस है इन सब में. तो वो डिस्कस करने के लिए हमने एक स्लाइड यहाँ पर रखी है. फर्स्ट विल स्टार्ट विद बिग डेटा. बिग डेटा क्या है? बिग डेटा इज बेसिकली मैसिव वॉल्यूम ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. स्ट्रक्चर्ड डेटा जहाँ पर टेबल फॉर्मेट में हमारे पास डेटा है, हम सभी लोग RDBMS, DBMS यूज करते हैं, दैट इज यूजिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब कि जितने भी अगर आप देखोगे तो फेसबुक पे जो मैसेजेस हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ट्वीट्स हैं, पोस्ट हैं, जितने भी आप ये सब देखेंगे, दी ऑल आर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों को मिला के मैसिव वॉल्यूम जब आप स्टोर करते हैं, so that is called big data. Okay, then what is data mining? अब आपने डेटा तो इतना सारा स्टोर कर लिया, but then now you need to extract that data. Okay, so practice of extracting data from large pre-existing databases. अगर आपके पास बहुत huge data available है, big data available है, उससे अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, so वो सारी जो टेक्निक्स हैं, they are called as data mining techniques. Okay, ये हम बहुत हाई लेवल पर डिफरेंस इनका देख रहे हैं. थर्ड एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई में क्या फ़र्क है. okay? तो अगर आप इसमें सर्कल्स देखेंगे तो सर्कल्स में आपको दिखेगा कि कुछ तो कॉमन एरियाज़ हैं जहाँ पे ये सब ओवरलैप करते हैं और कुछ ये डिफरेंट एरियाज़ हैं. सो ऐसा बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है कि कहाँ पर आपका ये चीज़ डेटा साइंस है, कहाँ पर ये चीज़ मशीन लर्निंग है. कई जगह पर आपको ओवरलैप मिलेगा, बट एक अगर हाई लेवल पर हम डिफरेंस समझना चाहें कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई में क्या डिफरेंस है, तो एक हाई लेवल डिफरेंस ये है कि डेटा साइंस बेसिकली प्रोड्यूसेस इनसाइट्स. मतलब अगर आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को आप एनालाइज करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एमपी के सारे स्कूल्स के सारे स्टूडेंट्स का डेटा अवेलेबल है, आप एनालाइज करना चाहते हैं कि लास्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट किया था, कितने स्टूडेंट्स ने आगे कंटिन्यू किया. तो जिन्होंने ड्रॉप आउट किया वो क्या रीजंस हो सकते हैं ड्रॉप आउट्स के? प्रॉब्ली वो एक स्पेसिफिक सिटीज़ के रहने वाले थे इसलिए हुए, या अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हुए, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हुए, या आप एनालाइज कर सकते हैं कि रिलीजन इज़ अ फैक्टर, और कास्ट इज़ अ फैक्टर, और डेमोग्राफीज इज़ अ फैक्टर. सो ये सारी चीज़ें
जब आप एनालाइज करते हैं, सो दैट एनालिसिस प्रोड्यूसेस सम इनसाइट्स कि प्रॉब्ली ये रीजन हो सकता है कि जिस वजह से ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहा है. सो दैट एनालिसिस इज कॉल्ड डेटा साइंस. जब आप डेटा को एनालाइज करते हैं, उससे कुछ इनसाइट्स निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस. ओके, नाउ सेकंड इज मशीन लर्निंग. ओके, सो बेसिकली मशीन लर्निंग प्रोड्यूसेस प्रेडिक्शंस. ओके, अब आपके पास पुराना काफ़ी सारे सालों का डेटा है, एमपी के सारे स्कूल्स का डेटा है, सारे स्टूडेंट्स का डेटा है. अब आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो कि इसमें से कौन कौन से स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करेंगे और कौन कौन से स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट होने के चांसेस है. और ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट होने के चांसेस कितने परसेंटेज है. ओके, सो व्हेन यू आर प्रेडिक्टिंग दिस, you are using machine learning algorithms. Okay, so data science give you insights, machine learning produces predictions. Now what is AI? अगर आपने जो predictions किया है उसके बेसिस पे अगर आप कुछ actions लेते हैं, so that is called AI. Okay, so this is very high level difference. अगर आप समझना चाहें, data science जो है वो insights produce करते हैं. अगर आप कुछ उस insights के बेसिस पे अगर आप कुछ predictions करना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट के बारे में, सो दैट इज मशीन लर्निंग. और अगर आप कुछ उस प्रेडिक्शंस के बेसिस पे कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, सिमिलरली अगर हमने अभी जैसे ड्राइवरलेस कार्स के बारे में देखा था, सो अगर एक कार ड्राइव कर रही है एंड इट प्रिडिक्ट्स कि सामने साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड में क्या लिखा है कि वेदर इट सेज कि टर्न लेफ्ट और टर्न राइट. सो इफ इट प्रिडिक्ट्स कि अगर लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है, उस साइन बोर्ड में क्या लिखा है, लेफ्ट टर्न लिखा है, राइट टर्न लिखा है, अगर आप वो प्रिडिक्ट करते हैं, देन दैट मीन्स यू आर यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. और अगर उस प्रिडिक्शन के बेसिस पे आप कुछ एक्शंस भी लेते हैं कि वो कार अगर उसमें साइन बोर्ड में लिखा था टेक लेफ्ट टर्न, तो आप कार को लेफ्ट टर्न करते हैं. अगर उसमें लिखा था राइट टर्न, तो अगर आप राइट टर्न करते हैं. अगर उसमें स्टॉप लिखा था, सो यू अप्लाई ब्रेक. सो दैट इज एक्शंस. सो दैट मीन्स यू आर यूजिंग AI बेस्ड एल्गोरिथम्स. ओके, और अगर आप इसको फिर से एनालाइज करना चाहते हैं कि हमारी कार ने कितने समय में सही साइन को सही बार सही रीड किया, कितनी बार गलत रीड किया, तो अगर गलत रीड किया तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. प्रॉब्ली वो डार्कनेस की वजह से था, लाइट की वजह से था रीज़न, या फिर रेंज की वजह से उसने सही प्रिडिक्ट नहीं किया, या फिर देयर कैन बी सम अदर रीजंस. तो जब आप वो एनालाइज करते हैं डेटा का, पुराने डेटा को जब आप एनालाइज करते हैं, दैट इज डेटा साइंस. ओके, सो दिस इज हाई लेवल डिफरेंस बिटवीन AI, machine learning and AI, data science. So we have already discussed data science basically produces insights, और इसमें जो टूल्स यूज होते हैं वो बहुत बेसिक. अगर आप यूज करना चाहें तो MS Excel भी यूज कर सकते हैं, Power BI यूज होता है, Tableau यूज होता है. So these are the applications which you use for data analytics. Okay. Second, if we talk about is machine learning. So machine learning is considered as field of prediction. Okay, prediction future का भी हो सकता है कि future में क्या होने वाला है, और prediction current का भी हो सकता है. Like अभी हमने देखा कि future में अगर आप इसमें देखते हैं कि किसी patient को कैंसर होने के chances है कि नहीं है, अगर आप वो predict करें तो you are predicting about future. और अगर आप predict करें कि image में कोई particular मतलब मे बी डॉग है या बर्ड है या कोई पर्सन है, so you are predicting for the present. So prediction can be for future as well as for present. So in both cases you are using machine learning algorithms. And AI basically जहाँ पर आप actions ले रहे हैं. Okay, जैसे बहुत सारी गेम प्लेइंग एल्गोरिथम्स है, डीप ब्लू, अल्फागो. रोबोटिक्स जहाँ पर आप मोशन कंट्रोल करते हैं या फिर सर्जरीज वगैरह परफॉर्म करते हैं. जिस तरह से गूगल मैप है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसमें कि अभी एलेक्सा आप यूज़ करते हैं, कोटाना है माइक्रोसॉफ्ट का. ये सारे जो एल्गोरिथम्स हैं, दे आर बेसिकली AI बेस्ड एल्गोरिथम्स. सो दिस इज हाई लेवल डिफरेंस बिटवीन AI मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस. ओके, नाउ कमिंग टू द टूल्स कि क्या क्या टूल्स अवेलेबल है. अगर आप एक्साइटेड हैं, जैसे मैं भी एक्साइटेड हूँ फॉर द फील्ड ऑफ AI मशीन लर्निंग, अगर आप लोग भी ये सुनने के बाद एक्साइटेड हैं कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है, इतनी सारी कंपनीज काम कर रही हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, इतने सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, और अगर आप सीखना चाहते हो, सो देर आर सम टूल्स. कौन से टूल्स आपको यूज़ करना चाहिए? तो टूल्स में पहले तो हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की. ओके, सो लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो अवेलेबल है, जिसमें कि आप इन सब के लिए डेवलपमेंट कर सकते हो. द मोस्ट पॉपुलर इज पाइथन. Okay, the most popular language for
डेवलपिंग एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस रिलेटेड एल्गोरिथम्स इज पाइथन। उसके बाद आर भी है, गूगल गो है, और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। जावा में भी डेवलपमेंट हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट में भी डेवलपमेंट होता है, स्पार्क इज अ लैंग्वेज। तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनमें कि एआई मशीन लर्निंग से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, बट द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन लास्ट फ्यू ईयर्स इज पाइथन। लैंग्वेजेस के बाद आता है आपका प्लेटफॉर्म, कि कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज कर कर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। ओके, सो अगर आप देखेंगे जितनी भी बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं प्लेटफॉर्म्स। ओके, लाइक माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, गूगल की बात करें, अमेजोन की बात करें, AWS है, ऑरेकल है। सो ये सारे के सारे आपको फ्री में ये सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराते हैं, जिसमें कि टूल्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं। आपको लर्निंग रिसोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, सारे के सारे डेटा अवेलेबल है, इवन एल्गोरिथम्स भी वहाँ पर उन्होंने सॉल्व करके रखी हैं। सो अगर आपको कोई कोडिंग एग्जांपल्स भी अवेलेबल है, आपको ये देखना है कि मुझे प्रॉब्ली इसमें रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम यूज़ करना है, सो यू कैन गो देयर, यू कैन पिक, यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। उसका जो कोड है, उस कोड को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये सारे के सारे टूल्स, लर्निंग रिसोर्सेज और कोडिंग एग्जांपल्स आर अवेलेबल completely free of cost. Okay. Then third thing comes in machine learning tools is libraries. Okay. लाइब्रेरीज हम सभी लोग यूज़ करते हैं, सी में हम यूज़ करते थे, हम लोग C++ में भी लाइब्रेरीज यूज़ करते थे। लाइब्रेरीज बेसिकली कुछ ऑलरेडी कंपाइल्ड कोड अवेलेबल है फॉर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी लाइब्रेरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लाइक टेंसरफ्लो, scikit-learn, numpy, pandas, sklearn, matplotlib। सो ये सारी ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल लाइब्रेरीज हैं। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया सीखना, तो नाम से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, दे आर वेरी इजी टू यूज़। ओके, सो लैंग्वेजेस, प्लेटफॉर्म्स एंड लाइब्रेरीज। ठीक है, देन कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना है। सो अगर आपको पहले लैंग्वेज आपने डिसाइड कर ली, पाइथन यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। सो वन प्लेटफॉर्म इज डेस्कटॉप बेस्ड प्लेटफॉर्म, जिसको कि आप अपने यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टम पे, इस एनाकोंडा। ओके, एनाकोंडा आप डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ में पाइथन और आर लैंग्वेज अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। उसके साथ में पैकेजेस या लाइब्रेरीज जो है, 100 से ज़्यादा लाइब्रेरीज ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगी। आईडीज जो है, जिस आईडीज मतलब जो डेवलपमेंट के लिए आपको एडिटर्स चाहिए, स्पाइडर है, जुपिटर है, आर स्टूडियो, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। एंड सिमिलरली कोंडा, जो उसको पैकेजेस को मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए। सो अगर आप अपने डेस्कटॉप पे कोई टूल इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द टूल्स इज एनाकोंडा, जिसको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। बट जैसा मैंने आपको कहा था कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज हैं, वो अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स, टूल्स, लर्निंग रिसोर्सेज सभी कुछ फ्री में अवेलेबल कराते हैं। तो लाइक अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, सो माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोवाइड करी है, विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रोसॉफ्ट AI। अगर आप सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट AI, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की AI की जो साइट है उस पर वो लेके जाएगा, और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहली चीज़ जो अवेलेबल है बेसिकली प्लेटफॉर्म्स, टूल्स एंड सर्विसेज, जो भी आपको चाहिए सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है फॉर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, IoT एंड एवरीथिंग। सेकेंड, आपको क्या लगता है सीखने के लिए कि कैसे लर्न करेंगे इसको? सो देयर इज अ पोर्टल कॉल्ड AI स्कूल, माइक्रोसॉफ्ट AI स्कूल, जिसमें आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। ओके, एंड देन AI लैब, जैसे कि हमने कहा था, कोडिंग एग्जाम्पल्स, सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, या जो कि कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी AI लैब पर अवेलेबल हैं। आप चाहो तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसको कॉपी करके, कस्टमाइज करके अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड ऐसा सॉल्यूशन है, तो अपने सॉल्यूशंस को आप AI लैब पर अपलोड भी कर सकते हो। सो दिस इज वन क्लाउड प्रोवाइडर जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट AI। सेकेंड, अगर आप देखोगे तो गूगल AI हब इज ऑल्सो देयर। ओके, गूगल AI हब में भी वही सारी चीज़ें गूगल ने प्रोवाइड की है, राइट। गूगल क्लाउड पे गूगल AI प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल,
जिसमें कि आपको सारा प्लेटफॉर्म, टूल्स, सर्विसेज सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको गूगल कोलैब एक बार जाकर साइट विजिट करनी चाहिए, जहाँ पर आपको आईडीज अवेलेबल है जिसमें कि आप अपने पाइथन से रिलेटेड कोड रन कर सकते हो। ठीक है, आपको अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं रन करना है, जो भी रन होगा सर्वर्स पे रन होगा। ओके, सो बेनिफिट है गूगल कोलैब का, कोई कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सर्वर पे किया हुआ है। जीपीयूज मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है, जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकती हैं, जो कि बहुत हाई स्पीड प्रोसेसर्स है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस आपको अवेलेबल है। और इजी शेयरिंग, मतलब अगर आपके पास कोई कोड आपने डेवलप किया, किसी को रिव्यू के लिए शेयर करना चाहते हैं, तो शेयरिंग इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। और 16 GB तक का आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल कोलैब पर अवेलेबल है। अपने सॉफ्टवेयर को स्टोर कर सकते हो, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन स्टोर ऑन गूगल कोलैब। ओके, सिमिलरली गूगल सीड बैंक, जहाँ पर बहुत सारे मशीन लर्निंग एग्जाम्पल्स, इंटरेक्टिव मशीन लर्निंग एग्जाम्पल्स अवेलेबल है, जिसमें कि आपको कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसको ओपन करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो वहाँ से कॉपी करके, कस्टमाइज करके अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हो। सो द सेकेंड थिंग इज गूगल AI हब। The third major cloud provider company is Amazon. So Amazon Web Services is also providing lot of tools, platforms on their website. Okay, so अगर आप देखेंगे तो AWS Solutions Reference Architectures में, जहाँ पर सारे के सारे आर्किटेक्चर डायग्राम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपको स्पेसिफिक आपकी प्रॉब्लम है, आप उसके हिसाब से स्पेसिफिक आर्किटेक्चर आप वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो। AWS सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट्स, जहाँ पर पहले से बने हुए वेल आर्किटेक्टेड मल्टी सर्विस पैटर्न्स आर अवेलेबल। आप वहाँ पर अपने सॉल्यूशंस आपको सिर्फ क्रिएट करना है। ओके, एंड सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि आपको क्लाउड में स्पेस अवेलेबल है, आप अपने आर्किटेक्चर को वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं, उन आर्किटेक्चर को या उन सॉल्यूशंस को अपने इसमें कॉपी भी कर सकते हैं। सो हमने जैसे देखा 3 मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट AI आपको फ्री में सब कुछ अवेलेबल कराते हैं, गूगल क्लाउड AI जो है यही भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, AWS सॉल्यूशंस लाइब्रेरी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो वंस यू हैव डिसाइडेड कि कौन सी लैंग्वेज पे काम करना है, कौन से सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है, ओके, द थर्ड थिंग कम्स इज अभी सीखना स्टार्ट कैसे करना है, व्हाट शुड बी माय लर्निंग पाथ। ओके, सो दिस इज अ सजेस्टिव लर्निंग पाथ, आप कोई सा भी लर्निंग पाथ यूज कर सकते हैं, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू मी दिस कैन बी अ सजेस्टिव लर्निंग पाथ, जिसमें कि फर्स्ट यू शुड स्टार्ट लर्निंग अबाउट फाउंडेशंस। ओके, फाउंडेशंस अबाउट स्टैटिस्टिक्स, फाउंडेशंस अबाउट data cleaning related algorithms, foundation about machine learning related algorithms, theory about algorithms. Okay, so once you are through with the foundation, once you are through with basic maths, statistics about machine learning, deep learning, then you can start into machine learning algorithms. Okay, एक बार अपने statistics थोड़ा सा समझ में आ गया आपको, एक बार आपको मैथ्स थोड़ा सा समझ में आ गया, स्पेसिफिक जो इस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है, then you can start with machine learning algorithms. Okay, basic machine learning algorithms आपको सीखना है। आपको यहाँ पर ये सुन के बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है या डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है, ये अपने आप में हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड करती हैं, बट जब आप एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको कहीं पर भी इस एल्गोरिथम को नहीं बनाना है। सपोज अगर आपको कोई कहता है कि इस जगह पर आपको रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम यूज करनी है, या यहाँ पर आपको डिसीजन ट्री एल्गोरिथम यूज करनी है, या आपको डीप लर्निंग के लिए CNN एल्गोरिथम यूज करनी है, सो यू डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट CNN एल्गोरिथम। CNN एल्गोरिथम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, आपको सिर्फ उसकी APIs को कॉल करना है। जैसे हमने बोला था कि लाइब्रेरीज सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको सिर्फ वो लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, एंड यू जस्ट नीड टू कॉल अ फंक्शन फॉर CNN एल्गोरिथम और फॉर रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। ओके, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी एल्गोरिथम को यूज करना है और क्यों यूज करना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी एल्गोरिथम होना है, और सेकंड पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि उसका बेसिक रीजन क्या है, और आपको उनके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे जो भी API आप कॉल करते हैं उसमें कुछ आप पैरामीटर्स पास करते हैं, तो कौन से पैरामीटर्स की क्या वैल्यू पास करनी है जिससे कि आपकी एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज होगी। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग हाइपर पैरामीटर्स।
तो वो आपको उसका एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप मशीन लर्निंग आप सीख सकते हैं। फिर मशीन लर्निंग के बाद यू कैन गो टू डीप डाइव इनटू क्लासिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। फिर आप डीप लर्निंग फंडामेंटल्स से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर deep dive into deep learning algorithms, okay, and then you can learn reinforcement learning. एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हम डायरेक्टली डीप लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं बिना मशीन लर्निंग सीखे? कर सकते हैं, सीधे डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स भी आप लर्न कर सकते हैं, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि पहले आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीखें ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, एंड देन यू कैन गो फॉर डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, ओके। सो दिस इज अ लर्निंग पाथ फ्रॉम माई साइड फॉर एआई मशीन लर्निंग। इसके अलावा जो एक चीज़ और है, जो विजुअलाइजेशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, तो विजुअलाइजेशन के लिए भी कुछ टूल्स अवेलेबल है। जैसे एक्सेल में भी आप डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं, चार्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं। सिमिलरली इससे थोड़ा एडवांस जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इज़ अ टूल विच इज़ अवेलेबल। पावर बीआई में भी आप बहुत अच्छे विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। देन यू कैन लर्न टैब्ल्यू फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। टैब्ल्यू इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टूल, जिसमें कि डेटा विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह आप बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज लर्निंग पाथ फॉर एआई मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस अकॉर्डिंग टू मी, ओके। व्हाट नेक्स्ट, ओके। अभी इतना हमको लग रहा है वी आर क्वाइट एक्साइटेड। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इसमें आ रहा है, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, वी कैन स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेजेस और प्लेटफॉर्म्स और टूल्स। बट अभी इसके बाद इमीडिएट हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके। दिस इज अगेन अ सजेस्टिव पाथ। मुझे लगता है कि अगर आप सभी स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टीज हैं तो आप सबसे इमीडिएट एक काम कर सकते हैं कि यू कैन फॉर्म एन एआई सेल विद इन योर इंस्टीट्यूट। एआई सेल कुछ नहीं है, बेसिकली नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका कॉमन इंटरेस्ट है इन द फील्ड ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग, ओके। उसमें आपका करना क्या होगा, उसमें आपको अलग अलग एआई कम्युनिटी से डिस्कस करना है, वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या क्या काम चल रहे हैं, वो आपको समझना है, आपको कोलैबोरेट करना है आपस में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आसपास। जैसे एक प्रॉब्लम मेरे दिमाग में है जिसमें कि IMR और MMR होता है, उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो IMR इज लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड MMR इज मदर मोर्टेलिटी रेट। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो रूरल एरियाज में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं कि मदर मोर्टेलिटी रेट बहुत एमपी में सबसे ज़्यादा MMR है और IMR है। तो वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे आसपास हैं जिसको हम एआई मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई दोज प्रॉब्लम्स एंड यू कैन आइडेंटिफाई दोज सॉल्यूशंस। इसमें मेरी हेल्प लगेगी, कॉलेज के फैकल्टीज की हेल्प लगेगी, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। Similarly, you can volunteer for projects, events related to AI machine learning. आप AI से related, machine learning से related regional conferences, national conferences, international conferences organize कर सकते हैं। So this is all from my side. If there is any questions, suggestions or feedback, they are always welcome. So do we have any questions? Yes, sir. Sir, I'm interrupting in between. Like, Sure. A very detailed study you have already make is visible, and very deep concept of learning and a big comparison between these trending skill sets. It will really going to help our technocrats. Now, I would like to request Mr. Rahul Dubey to just portray our system and what culture we are opting for ML and AI, so that we can also have some suggestion with the guest, and also to brief students about what Cystic culture is all about. Over to you, Mr. Rahul. Ma'am, actually your voice is not audible properly to me. So please, can you repeat part? Mr. Rahul, now you can hear me? It's not clearly audible. Please. All right. Ekansh, help me out to just give a text to Mr. Rahul. Sure, ma'am. So now we would like to invite Mr. Rahul Dubey for his insights that what exactly is the culture that we follow at Systech regarding the same technologies, and we can also take some suggestions from our guests that how we can move ahead. Okay. Thank you, Ikanza. Thank you, Prachima.
And Pandey sir, it was a wonderful session as always. And you have given a lot of insights about the machine learning, its application, and I will say you have given the vast area specific knowledges about the ML. And in the similar way, what we are doing in the stack, we are having the special machine learning group, and we are training the students to develop various application in the area of the machine learning. We are having the Python training, specific trainings. We are having various visualization trainings to the students. Even we are also training the full stack type of things, like so they can develop their project as well as they can use their knowledge to implement the web development type of things. So this is what we are doing in the system. And apart from this, sir, there is one question that what we are doing, that what are the career options that in these vast fields are available for the students, according to your opinion? लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल, जैसा कि अभी हमने स्लाइड में भी देखा था कि लाइक एनवीडिया के भी जो हेड है उन्होंने भी कहा था कि इस फील्ड में बहुत ह्यूज डिमांड है डेवलपर्स की, जो न सिर्फ इन एल्गोरिथम्स को समझ सकते हो बट उनको ये पता हो कि इन एल्गोरिथम्स को कहाँ पर यूज़ करना है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक डेटा एनालिसिस, अगर आप देखेंगे तो डेटा एनालिटिक्स के लिए डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अभी डेटा विजुलाइजर्स की बहुत डिमांड है. इवन अगर आप एक सर्वे देखेंगे तो आईडीसी सेज की जितने भी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं मार्केट में, उनमें से 40% जॉब्स आने वाले फ्यूचर में नहीं रहेंगे. ओके, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज जॉब नहीं रहेंगे का मतलब ये नहीं है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, बट जॉब के टाइटल्स चेंज हो जाएंगे. जैसे अभी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करते हैं, थोड़े टाइम में डेटा इंजीनियर्स हमको अवेलेबल होंगे, डेटा इंजीनियर्स की जॉब अवेलेबल होगी. कंप्यूटर विजन एक्सपर्ट्स की जॉब है, जहाँ पर अगर आप कंप्यूटर विजन से रिलेटेड एल्गोरिथम्स में आप मास्टरी करते हैं, जहाँ पर आप जो वीडियोस को एनालिसिस करना है या इमेजेस को एनालाइज करना है, सो कंप्यूटर विजन एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत ह्यूज है. एनएलपी इंजीनियर्स की डिमांड है, जहाँ पर जो एनएलपी है बेसिकली, जहाँ पर आपको लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करनी है मशीन को, और मशीन को लैंग्वेजेस में ही, फॉर एग्जांपल एलेक्सा इज देयर, फॉर एग्जांपल कोर्टाना इज देयर. तो जहाँ पर एनएलपी से रिलेटेड एल्गोरिथम्स जो यूज़ करना जानते हो, जिन्होंने उन प्रोजेक्ट्स में काम किया हो, सो एनएलपी इंजीनियर्स की बहुत ह्यूज डिमांड है. मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स की काफ़ी डिमांड है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की. सो विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट्स की डिमांड है. सो दीज आर मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल एरियाज जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इन एरियाज को चूज़ कर सकते हैं. जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मतलब आइदर यू कैन गो फॉर डेटा साइंस, देन यू कैन गो फॉर विजुअलाइजेशन, यू कैन गो फॉर मशीन लर्निंग एरिया, you can go for deep learning, you can go for NLP, you can go for vision. So these are, you can go for reinforcement learning. So these are the multiple areas जहाँ पर students आगे बढ़ सकते हैं, और उनको, और इस फील्ड में काफ़ी सारे जॉब्स अभी अवेलेबल हैं. There are lot of startups जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो उन एरियाज में भी स्टूडेंट्स काफ़ी अप्लाई कर सकते हैं. So I hope I answered your question. Thank you, sir. Yes. And sir, apart from these various technology stacks that is mandatorily required for a fresher, so can you suggest some that must be the part of the curriculum and that must be the part of the course, so the fresher should be aware with that, so they can be the ready industry ready persons for the in the field of the AI, data science and the machine learning. या राइट, जैसे अभी हम लोगों ने अभी कुछ टेक्नोलॉजीज की बात की थी, जो हमने कुछ प्लेटफॉर्म्स डिस्कस किए थे. सो देयर आर 2 or 3 थिंग्स. ओके, जैसे कि एक तो लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं. सो फर्स्ट थिंग पाइथन, आई थिंक आजकल सारे कॉलेजेस में सिलेबस में ऑलरेडी है, पाइथन स्टार्ट हो गया. आई थिंक स्कूल्स में भी लोग स्टूडेंट्स पाइथन लर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो पाइथन we are having a special batches for the Python only, and we are having the Python trainings also. Yes, so Python is a must. Python or R basically I think is a must for starting their career in machine learning. Then we should have one subject for basic mathematics and basic statistics for machine learning and AI. So अगर किसी स्टूडेंट को AI मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो उनको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या स्टेटिस्टिक्स इसमें यूज होने वाली है, कितना मैथमेटिक्स यूज होने वाला है. हालांकि बहुत ज़्यादा डीप में मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स नहीं होगा, बट स्टिल जो बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड है फॉर AI मशीन लर्निंग, दैट शुड आल्सो बी टॉट टू देम. उसके बाद देन
obviously you must be teaching them machine learning and deep learning algorithms. Apart from that, अगर आप tools की बात करें, so I would advise कि जो tools अभी हमने देखे थे, like we can ask them to select a tool like maybe Microsoft AI or maybe Google AI or maybe AWS. तो ये एक तरह के field choose कर सकते हैं. Then we can give them practical trainings on these tools. एंड इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं, आई वुड एडवाइस देम कि जैसे बहुत सारी साइट्स हैं जो कॉम्पिटिशन्स रन करते हैं, जैसे केगल एक वेबसाइट है, गिटहब है. तो यहाँ पर रोज कॉम्पिटिशन्स कुछ ना कुछ अपलोड होते हैं. दे अपलोड अ प्रॉब्लम और स्टूडेंट्स उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या डेवलपर्स उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो आई वुड एडवाइस ऑल द स्टूडेंट्स टू कीप विजिटिंग दीज वेबसाइट्स. यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं. उन प्रोजेक्ट्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम अपलोड कर सकते हैं. और कुछ अगर अच्छी प्रॉब्लम्स होती है तो उनके सॉल्यूशंस पे प्राइसेस भी अवेलेबल होते हैं. तो ये केगल वेबसाइट है, गिटहब है, इस तरह की वेबसाइट्स पर कंटिन्यूसली विजिट करते रहें, उनमें पार्टिसिपेट करते रहें. एंड कॉलेज कैन आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट. Yes, sir, definitely. Our students are working for the Kaggle competitions, as well as they are going for the hacker rank, as well as they are having the GitHub account. So they are doing all these activities. It's a good from your side to listen all these things that we are already doing all these practices. So it would not be a very harder for us for the future. Sure. Thank you, And sir. if you in It's any over case to you you, need my help, I'm always available. Yes, sir. Please continue. Sure. Thank you so much, Manish sir, for insights of the artificial intelligence, machine learning, data science, and deep learning. And we will definitely plan to set up our the labs for the AI cell, as well as if any help regarding from your side, I'll definitely let you know. From your support and help is very much required for the setup of the AI cell. And I'm now, always available, thanks, sir. thank you so much, sir. And it's a very ultimate session by you for the AI and machine learning, deep learning, and the data science. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank I you also so much, enjoyed sir. talking to everyone. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir, from the entire team SysTech. We are very glad to have you with us for this wonderful session, and we hope that all your inputs will be availed by us very seriously, and we extend our gratitude to you. Once again, very thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir.